Welcome to e-learning science. I'm Dr. Shahzad Mudassir Rashid, and today we will discuss some important aspect of cell biology, which we call as endomembrane system. As you know me, I'm Mudassir, Dr. Shahzad Mudassir Rashid. You can search me on YouTube by the name of Dr. Shah Mudassir, and I am a NEET specialist, done my veterinary sciences, bachelor's degree, master's, and PhD, working as a scientist. ओके सो टुडेज टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम व्हाट डू यू मीन बाय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम endomembrane system, since this is the component of this endomembrane system is the component of cell biology, cell structure and function. It will be very useful for class 11th and NEET students. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब होता है सबसे पहले वही है एंडो मीन्स इनसाइड, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. जैसे मैंने लिखा है, इट इज ग्रुपिंग ऑफ सम ऑर्गेनल्स. कुछ ऑर्गेनल्स के मिलने से एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनता है, और वो ऑर्गेनल्स कौन है जो आपस में मिलकर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं. दे आर 3 in number, they are 4 in number. One is the endoplasmic reticulum, second is Golgi apparatus, third is lysosome, and fourth is your vacuole. So the aggregation of the 4 organelles constitute what we call as endomembrane system. So I have written it here like this. It's a grouping of some organelles which function in close coordination with one another. For example, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, and vacuole. Right. Okay, let us see the picture of endomembrane system inside the cell. You just see the cell. आप देख रहे हैं सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन है और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है जो मैंने दिखाया है, और इसी न्यूक्लियस के ऊपर आप देख रहे हैं इमीडिएटली सराउंडिंग द न्यूक्लियस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. इसके जस्ट नीचे आप देखते हैं गोल्गी apparatus, अगेन वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. और आप साइड में देखेंगे एक गोल जो रेड से बना हुआ है, which we call as lysosome, again a constituent of endomembrane system. And finally, the last thing which I am going to discuss is the vacuole, that's also the constituent of endomembrane system. But here, in this topic, we will make emphasis on endoplasmic reticulum. जब हम इसकी डिस्कवरी पे जाते हैं, I will make it in some points. You just concentrate, and I'm sure you will understand the whole topic. When we discuss the discovery में सबसे पहले हमारे पास it was Garnier who called endoplasmic reticulum as ergistoplasm in the year 1897. इसने अंडर लाइट माइक्रोस्कोप फिलामेंटस स्ट्रक्चर देखा साइटोप्लाज्म में which is basophilic in nature. Now the question is what he has seen. Why it was basophilic? बेसोफिलिक का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आप बाद में देखेंगे वहां पे होते हैं राइबोसोम्स, and ribosomes are basophilic. So he saw this endoplasmic reticulum and he considered it as ergistoplasm, and which was actually basophilic in staining. Later on, it was discovered by Porter and Thompson, and the name was given by Porter. Right. The most developed portion of endomembrane system, the most developed portion of cell is the endomembrane system. आप देखेंगे सबसे most developed portion endomembrane system का endoplasmic reticulum है. Endomembrane system भी काफी developed है, बहुत जगह उसने सेल में पकड़ा है, लेकिन सबसे developed portion इस endomembrane system का Golgi apparatus है. Right? ओके, वी विल सी द ऑकरेंस. देखिए, ऑकरेंस का मतलब होता है कहाँ किन सेल्स में पाया जाता है. दैट्स ऑकरेंस. यू विल फाइंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. आपको यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा, लेकिन देयर इज सम एक्सेप्शन लाइक ओवा में नहीं पाया जाता है. एम्ब्रियोनिक सेल्स सर्व एज एन एक्सेप्शन, एंड मैच्योर आरबीसीज आल्सो सर्व एज एन एक्सेप्शन. आरबीसी में तो खैर कुछ नहीं होता है. When we come to know why RBCs do not contain anything, because they have to carry the pigment which we call as hemoglobin, and they have the RBC has a great function to play. That is, it has to supply the oxygen to every tissue and every cell of our body. Therefore, the RBCs is divided of organelles. So you will find it in eukaryotic cells. There are some exception in eukaryotic cells like ova, embryonic cells or RBCs.
एंड इट इज ऑल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट, कोई भी ऑर्गेनल नहीं होता है। ओके, व्हेन वी सी व्हाट इज द अमाउंट, इट वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंटेंट कितना ज्यादा होता है एक सेल में, आई टोल्ड यू इट वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। कुछ सेल्स में बहुत ज्यादा होगा, एक्सटेंसिव होगा, एक्सटेंसिव बहुत ज्यादा। कुछ सेल में सिंपल होगा, कुछ सेल में रिड्यूस्ड होगा, बहुत कम। इट इज एक्सटेंसिव इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। ऐसी सेल्स जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है उनमें काफी ज्यादा होता है, जैसे हमारे पास WBCs है। WBCs मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स है। किस सेल को मैं बोलूंगा मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल? एक वो सेल जिसका एक्सप्रेशन का काम ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मानूं एक्सप्रेशन का मतलब होता है जिसका प्रोटीन सिंथेसिस का काम ज्यादा है। अगर कोई सेल ज्यादा प्रोटीन बनाता है, ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन करता है, ज्यादा ट्रांसलेशन करता है, obviously the amount of protein which will be formed in the cell will be more. So similarly what we see ऐसी सेल्स में राइबोसोम्स का नंबर ज्यादा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर ज्यादा होगा। So it is extensively developed in metabolically active cells. And I will tell you, I have written a relation. Protein production is directly proportional to endoplasmic reticulum content in a cell. अगर कोई सेल ज्यादा पार्टिसिपेट करती है प्रोटीन सिंथेसिस में, तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेंट भी उतना ज्यादा होगा, बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is the organelle which is associated with protein synthesis. इसीलिए अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा तो प्रोटीन का प्रोडक्शन भी उसमें काफी ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आया इट में बी एक्सटेंसिवली डेवलप्ड, दूसरा आया इट में बी सिंपल। सिंपल इन स्टोरेज सेल्स। स्टोरेज सेल्स में आप इसको पाओगे इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स। व्हाट आर द स्टोरेज सेल्स? आपको पता है फैट स्टोरिंग सेल्स आर नोन एज एडिपोस सेल्स और एडिपोसाइट्स, जो फैट को स्टोर करती है, एडिपोस सेल्स। आप देखते हैं हमारा फैट ज्यादातर जो है बेली पोर्शन में एक्यूमुलेट होता है, क्योंकि वहां पे एडिपोस सेल्स का नंबर काफी ज्यादा होता है और वहां पे ही फैट स्टोर होता है उन सेल्स में। So it is simple. Endoplasmic reticulum is also present in such adipose cells, in fat-storing cells, but in the form of few tubules, or it may be reduced, present in very small amounts, and it is reduced in case of spermatocytes in the form of few vesicles. After this, if I will tell you, मुझे सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ढूंढना है, एक जगह वहां होगी जहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और एक जगह, बाकी जगह ऐसी होगी जहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस कहां है एंड ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस कहां नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में कहां है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में कहां नहीं है, उसके बुनियाद पे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने सेल के अंदर की सरफेस को डिवाइड किया है इनटू टू पोर्शंस। वन इज ल्यूमिनल एंड सेकंड इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। Luminal means the portion where you will find the endoplasmic reticulum, and extraluminal means the portion where you will not find the endoplasmic reticulum. इसका मतलब सेल में इसका कंटेंट ज्यादा होता है, तभी हम बोलते हैं कि वो जगह जहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ल्यूमिनल है, और जहां पे नहीं है वहां पे हम कहते हैं इट इज एक्स्ट्राल्यूमिनल। मैंने डायग्राम से दिखाया आपको। ल्यूमिनल का मतलब हो गया, सपोज मैंने न्यूक्लियस बनाया है रेड कलर के स्केच से, उसके बाद मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया है, तो यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो जगह इसने साइटोप्लाज्म में पकड़ी है उसको ल्यूमिनल कहेंगे, और उसके बाहर की जो जगह है उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ओके, नाउ लेट्स गो टू स्ट्रक्चर। It is a three-dimensional network of intercellular membranes and it is formed of three elements. Membrane structure है, three-dimensional network का बना हुआ membrane structure है, and it is formed of three types of elements. तीन किस्म के elements पाए जाते हैं, which you must be knowing. One is the cisternae, second is the tubules, and third is the vesicles. So endoplasmic reticulum is made up of cisternae, tubules, and vesicles. इसके स्ट्रक्चर के तीनों कंपोनेंट्स हम 1 to 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले सिस्टरने। सिस्टरने आर फ्लैटनेड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, दे lie in piles parallel to one another. मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए मैंने सिस्टरने के सैक लाइक स्ट्रक्चर्स,
और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर एक पाइल बनाते हैं, एक चट्टा बनाते हैं. दे मेक ए पाइल, दे फॉर्म ए पाइल. And on these cisternae, you are finding some black dots, and these black dots are ribosomes. So on the surface of cisternae, you will find you have some black dots. Black dots मैंने बनाए हैं, black नहीं होते हैं. जो dots ये हैं, इनको मैं बोलता हूँ ribosomes. Okay. So endoplasmic reticulum membrane. अब जो ये cisternae का endoplasmic reticulum cisternae का जो membrane है, इसकी अगर मैं थिकनेस देखूंगा, इट इज 50 to 60 एंगस्ट्रॉम्स. आपको पता है जो भी मेम्ब्रेन, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे वो मेम्ब्रेन अराउंड द माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट का हो, न्यूक्लियस का हो, जितने भी मेम्ब्रेन्स हमारे पास सेल में हैं, उनकी थिकनेस 50 to 100 एंगस्ट्रॉम्स तक वेरी करती है. एंड इफ यू सी द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, it is 50 to 60 angstroms. It is 50 to 60 angstroms thick, and therefore has higher protein to lipid ratio than plasma membrane. Plasma membrane से इसका higher protein to lipid ratio है. It means इसमें protein content ज़्यादा है as compared to lipid content. जब हम compare करेंगे इसको plasma membrane के protein और lipid content के साथ, तो इसमें protein content ज़्यादा है comparatively. और membrane thickness ranges from 50 to 100, लेकिन in case of cisternae of endoplasmic reticulum, the membrane thickness is 50 to 60 angstroms, which means ये lowest portion है, 50 से 100 तक है, ये 50 to 60 है. तो मैं कहता हूँ the thickness, the membrane of the cisternae of endoplasmic reticulum is the thinnest membrane of cell, सबसे thinnest membrane है. And the cisternae has a diameter, इसका diameter जब हम देखेंगे, it is 4 to 5 nanometers. Okay, I told you, on the surface of the cisternae is not smooth. आप देखते हैं उनके ऊपर मैंने जो black dots दिखाए थे, उनके ऊपर होते हैं ribosomes. And ribosomes को पकड़ने के लिए, for example, this is ribosome, इसको पकड़ने के लिए हमारे पास दो glycoproteins होते हैं. एक को कहते हैं राइबोफोरिन 1, दिस इज राइबोफोरिन 1 एंड दिस इज राइबोफोरिन 2. इन्होंने पकड़ा है इस राइबोसोम को. सो ऑन द सरफेस यू हैव राइबोसोम, और उस राइबोसोम को पकड़ने के लिए इस सिस्टरने के मेम्ब्रेन के ऊपर दो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं. एक को कहते हैं राइबोफोरिन 1 और दूसरे को कहते हैं राइबोफोरिन 2 दैट बाइंड टू द राइबोसोम्स. राइबोफोरिन 1 का दूसरा नाम भी है, वी कॉल इट एज सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन ए, और राइबोफोरिन सेकेंड का दूसरा नाम है सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन बी. यू कैन रिमेंबर द अदर नेम्स एज वेल. ओके, तो ये मैंने बनाया है. देखिए ये राइबोसोम है, ये मैंने आपको सिखाने के लिए बनाया है. दिस इज द सिस्टरने, और सिस्टरने में आप देख रहे हैं एक साइड से राइबोफोरिन 1 है, दूसरे साइड से भी राइबोफोरिन 2 है, और इनके बीच में राइबोसोम है. मैंने शो किया है यहाँ पे. इस तरह से आप समझ सकते हो कि राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टरने by some proteins, glycoproteins known as riboforin 1 and riboforin 2. Then we have the second part which we call as tubule. Tubules, as you know, are tubular-like extensions. Tubule-like होते हैं, tube-like होते हैं, and which may be connected either with the cisternae, या तो ये cisternae के साथ जुड़े होंगे, और या तो ये किसके साथ जुड़े होंगे, या तो वेसिकल्स के साथ जुड़े होंगे. इसका मतलब cisternae के साथ tubules हो सकते हैं, या वेसिकल्स के साथ भी ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं. ओवरऑल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ट्यूब्यूल? ट्यूब्यूल गिव्स अ रेटिकुलर सिस्टम. इट गिव्स अ रेटिकुलर apparatus. What does reticularization mean? Reticularization means, for example, if this is a room, if we have nothing in this room, there is no reticularization. But if we get the logs of wood, number of logs of wood if we place in this room, we will say this room is no longer smooth now, it is reticular. There is a network, मकड़े का जाला, रेटिकुलराइजेशन. तो सेल की रेटिकुलराइजेशन जो है वो ट्यूब्यूल्स की वजह से है. हमारे पास हमारा जो बोनी मैट्रिक्स है, जो हमारा बोन का स्ट्रक्चर है, बोनी मास है, ये बोनी मास जो है ये हमें रेटिकुलराइजेशन देता है. अंडरस्टैंड? So the diameter of tubule is 5 to 10 nanometers, and it is most common in cells which are involved in synthesis of storage and in pigmented cells of retina. ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि ट्यूब्यूल्स आपको मिलेंगे ज़्यादातर उन सेल्स में जो सिंथेसिस करते हैं स्टीरॉइड्स की, और आपको ट्यूब्यूल्स मिलेंगे इन पिगमेंटेड सेल्स ऑफ रेटिना इन द फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स. ओके,
तो ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। ट्यूब्यूल्स कैसे दिखते हैं ये आपको मैंने बताया है यहाँ पे। इसके बाद है वेसिकल्स। Vesicles are oval or rounded vacuole-like elements. They are round in structure. They are free from ribosomes. Tubules are also free from ribosomes. Vesicles are also free from ribosomes. They usually occur isolated in the cytoplasm and they have a diameter of 2.5 to 550 nanometers. इनका diameter होता है 2.5 to 50 nanometers. सबसे ज़्यादा diameter vesicles का ही पाया जाता है. Then we move ahead. I want to see where this endoplasmic reticulum is actually located in the cell. Endoplasmic reticulum on one side is located just below the cell membrane, and it is also facing towards the Golgi apparatus, and it is also found close to the nuclear membrane. So, अगर मैं सेल में ध्यान से देखता हूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी apparatus के पास भी है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी है. सो हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल थ्रू प्लाज्माडेस्माटा इन द फॉर्म ऑफ डेस्मोटिब्यूल्स. मतलब ये है डेस्मोटिब्यूल एक प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन है बिटवीन प्लांट सेल्स. अगर दो प्लांट सेल्स है, एक सेल का दूसरे सेल के साथ एक कनेक्शन है और वो कनेक्शन प्रोवाइड करता है प्लाज्माडेस्माटा. ओके मैं कहता हूं कि अगर मैं देखूंगा जो पहली सेल है और जो दूसरी सेल है जो आपस में कनेक्टेड है एक कनेक्शन से जिसको प्लाज्माडेस्माटा कहेंगे, तो प्लाज्माडेस्माटा के इस साइड भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और प्लाज्माडेस्माटा के इस साइड दूसरी सेल में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा. तो हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पास फ्रॉम वन सेल into the another cell through plasmadestrata in the form of desmotibules. Understand? So now let's see the types. Types of endoplasmic reticulum अगर हम देखेंगे there are mainly two types of endoplasmic reticulum, and both the two types may be present in same cell, or they may be present, maybe one smooth endoplasmic reticulum present in some cells, rough endoplasmic reticulum is present in some other cells, or you may find there are cells जिनमें smooth भी होगा और rough भी होगा. लेकिन जब भी वो दोनों present होंगे, smooth भी और rough भी, तो वो एक दूसरे से continuous होते हैं. That's the second thing. So we have two types, smooth endoplasmic reticulum, also known as granular endoplasmic reticulum, and second is the rough endoplasmic reticulum, also known as granular endoplasmic reticulum. So let's talk of SER. Now I told you the structure of endoplasmic reticulum is formed by three elements, cisternae, tubules और vesicles. जब हम SER की बात करेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, इट इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. यहाँ पे आप ट्यूब्यूल्स पाएंगे और वेसिकल्स पाएंगे. ओके इसके बाद अगर आप देखेंगे इट इज फ्री फ्रॉम राइबोसोम्स. इसमें कोई राइबोसोम नहीं होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एग्रैन्युलर. एग्रैन्युलर, इट इज फ्री फ्रॉम राइबोसोम्स, देयर इज नो ग्रैन्यूल. And smooth endoplasmic reticulum is found in those cells which are engaged in synthesis and storage of fat and glycogen. जिसका काम है synthesis and storage of fat and glycogen. Understand? यानी synthesis of fat and glycogen का मतलब है जिनका काम है फैट को सिंथेसाइज करना या ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करना. टेल मी द सेल्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन सिंथेसिस ऑफ फैट एंड ग्लाइकोजन. आपके पास लिवर सेल्स है, वो स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन करते हैं, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन करते हैं. आपके पास एडिपोस सेल्स है, वो क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं किसको, फैट को. तो इसलिए उन सेल्स में ज़्यादा पाया जाएगा. फॉर एग्जांपल यू हैव मसल सेल्स. मसल सेल्स में भी स्टोरेज होता है किसका, ग्लाइकोजन का. एडिपोस टिश्यू सेल्स जिनमें फैट होता है, यू विल फाइंड इट लिवर सेल्स. तो दिस इज नॉर्मली हमें पता नहीं होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है. तो बाय दिस वे इफ यू रिमेंबर इट इज फाउंड इन दोज सेल्स व्हिच आर एंगेज्ड इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट एंड ग्लाइकोजन. यू विल रिमेंबर द सेल्स एज वेल. It usually lies near the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के पास ज्यादा यही होता है. इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन के नीचे हमें इमीडिएटली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल सकता है, उसके बाद हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल सकता है. Then we have RER. RER is mainly made of cisternae and few tubules. It is made up of some cisternae and very few tubules. Good number of cisternae and a few tubules. Okay. If we see ribosomes are present on it. सिस्टरने के मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं and ribosomes are making it granular. ये इसको granular बनाता है. On account of presence of ribosomes,
The RER is synthesizing proteins and enzymes, क्योंकि राइबोसोम is the seat for the synthesis of proteins. अब राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है तो जरूरी बात है it will be involved in the synthesis of proteins and enzymes, right? It is rich in cells which are actively engaged in protein synthesis. आप देखेंगे वो सेल्स जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा, या विच आर इन्वॉल्वड इन सेक्रेटरी एक्टिविटीज. सेक्रेटरी एक्टिविटीज का मतलब होता है सेल के बाहर से सेक्रेट आउट होता है प्रोटीन. अगर हमारी बॉडी में कहीं भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो वो सेल हमारी बनाती है, उसके बाद सेल के बाहर ये प्रोटीन आ जाता है. तो ऐसी सेल्स जो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे और जिनका सेक्रेटरी एक्टिविटी होगा उनमें आपको ये पाया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल पेनक्रियाटिक एसिनाई सेल्स, हमारे पास पेनक्रियाज है. पेनक्रियाज का हमारे पास एक्सोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट भी है, लेकिन एक्सोक्राइन पार्ट है जो है. एक्सोक्राइन पार्ट में हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स बनाए जाते हैं, जैसे पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, पेनक्रियाटिक लाइपेज है, यू नो. सो नंबर ऑफ एंजाइम्स आर फॉर्म्ड बाय द पेनक्रियाटिक जूस are present in the pancreatic juice which are formed by the pancreatic cells. So pancreatic acinine cells में अगर प्रोटीन ज्यादा ये लोग बनाते हैं, एंजाइम ये लोग ज्यादा बनाते हैं, तो इसमें क्वांटिटी जो होगी किस चीज की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो ज्यादा होगी. गॉबलेट सेल्स, दे आर कंटिन्यूअसली सेक्रेटिंग द म्यूकस, इसमें भी क्वांटिटी ज्यादा होगी. लिवर सेल्स में भी ये प्रोटीन्स बहुत सारे बनाते हैं. एल्बुमिन बनाता है, ग्लोबुलिन बनाता है, फिब्रिनोजन बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है. तो लिवर के सेल्स में भी आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, एंड यू हैव प्लाज्मा सेल्स एज वेल. द RER ऑफन ऑकर्स डीप इनटू द साइटोप्लाज्म. आई टोल्ड यू SER थोड़ा बाहर की ओर होता है, लेकिन RER यू विल फाइंड डीप इन द साइटोप्लाज्म. सो द ओरिजिन, outer membrane, क्योंकि मैंने बोला it is on one side, it is close to outer nuclear membrane. It may be evolved from outer nuclear membrane by outfolding. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसने एक आउटफोल्ड बनाया, वहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन सकता है, ओरिजिन हो सकता है. और इट मे बी फॉर्म्ड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज इट इज जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बन सकता है बाय फॉर्मिंग एन इनफोल्ड. इनफोल्ड बन सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा. The smooth endoplasmic reticulum seems to arise from rough endoplasmic reticulum by detachment of ribosomes. देखिए तीन चीजें हैं. ओरिजिन में या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनेगा, या तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड बनाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटफोल्ड बनाएगा, या तो प्री एग्जिस्टिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनेगा, जो पुराने वाले थे वो वही बनाएंगे. लेकिन एक बात याद रखिए, हम RER से SER बना सकते हैं. किस तरह से? By the detachment of ribosomes. Okay. Then we will see the functions. Let us discuss common functions. Common function की बात करेंगे तो it is cytoskeleton framework. It means, क्योंकि I told you there are tubules. Tubules are meant for support. They are tubular. They give reticularization. These tubules provide the mechanical support to the colloidal cytoplasmic matrix. ये support देता है. Suppose our bony mass is basically a reticular apparatus, and this reticular apparatus gives us a support. Similarly, cell का support जो है वो यही देता है, जिसको हम tubules कहते हैं. इसीलिए हम इसको कभी-कभार कहते हैं. It is also known as cytoskeleton of cell. Then ER as desmotubules control the movement of materials between two adjacent protoplasms, two plasmadesmata. मैंने पहले बोला दो सेल्स के बीच में प्लाज्माडेस्मेटा कनेक्शन होता है, यहाँ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. तो एक सेल के थ्रू मटेरियल ट्रांसफर हो सकता है एक सेल से दूसरी सेल के अंदर. मटेरियल में भी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल थ्रू प्लाज्माडेस्मेटा कनेक्शन, जिसको हम बोलते हैं डेस्मोट्यूब्यूल. एंड ER conducts information from cell exterior. जो बाहर से इंफॉर्मेशन सेल को आती है, अप्रोच करती है, उसको कंडक्ट करता है टू द इंटीरियर, अंदर तक लाता है, या फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस और फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. मींस also it is involved in transmitting the information from outside of the cell to the inside, or from the nucleus to the cytoplasm, or from the cytoplasm to the nucleus. Okay. Then we will discuss the functions of RER. I told you RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको राइबोसोम्स मिलते हैं. तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होगा वो ये होगा,
It contains ribophorins for providing attachment to ribosomes, यानी ribosomes की presence की वजह से इसका काम होगा protein synthesis. Now the second function is glycosylation. What does glycosylation mean? Glycosylation का मतलब होता है when we add carbohydrate residues to the proteins. अगर आप carbohydrates add करते हैं प्रोटीन को, suppose we have a protein, if we add some carbohydrate residue to it, ये बनता है ग्लाइकोप्रोटीन. अगर हम कोई लिपिड है, अगर हम इसको कोई भी कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू ऐड करेंगे, ये बनता है ग्लाइकोलिपिड. तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन. सो ग्लाइकोसाइलेशन इज अ प्रोसेस by which we will add some carbohydrate residues to the proteins. Okay, तो ग्लाइकोसाइलेशन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है. जब हम आगे गोल्गी अपैरेट्स पढ़ेंगे हमें पता चलेगा वहां भी ग्लाइकोसाइलेशन होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट रोल ग्लाइकोसाइलेशन का किस में है? RER में है कि गोल्गी अपैरेट्स में है. तो याद रखिएगा, इट इज गोल्गी apparatus which is mainly involved in glycosylation, but RER also has a role in glycosylation. Then there is a question asked from NEET in the year 2000. The cell organelle involved in glycosylation of protein is ribosome is not there, peroxisome तो बात ही नहीं, mitochondria की बात ही नहीं. तो the correct answer is C, which we call as endoplasmic reticulum. Right. The main organelle, one more question, involved in modification and routing of newly synthesized proteins to their destination. देखिए, modification means glycosylation. Post translation modifications means glycosylation. तो glycosylation के लिए कौन सा organelle involve है? तो again the option is endoplasmic reticulum and it is at D, right? The D is the correct answer. So it synthesizes proteins like serum proteins, membrane proteins and other proteins. All types of proteins are synthesized by this endoplasmic reticulum. You can understand this. So the function of RER is fat synthesis, lipid synthesis, protein synthesis, steroid synthesis. It has been asked in the year 1995. So it is protein synthesis. The proteins enter the channel of rough endoplasmic reticulum both for intracellular use as well as for the secretion. जो प्रोटीन जो बनाता है, कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है. उसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल के अंदर जाता है. किस लिए? फॉर बोथ इंट्रासेल्युलर यूज, चाहे सेल के अंदर इसका यूज हो या हमें इसका यूज सेल के बाहर हो. तो सेल के बाहर के यूज को हम कहेंगे सिक्रीशन के लिए, यानी दिस प्रोटीन विल कम आउट ऑफ द सेल, इट विल बी a secretory product of the cell, then it will be used somewhere where it is desired outside the cell. It provides precursors for the formation of lysosomes by Golgi complex. लाइसोसोम बनाने में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है और ये हम पढ़ेंगे लाइसोसोम में. ओके, SER कैन डेवलप फ्रॉम RER बाय डिस्कार्डिंग राइबोसोम. मैंने पहले भी बोला RER से हम SER बना सकते हैं अगर हम राइबोसोम्स को डिटैच करें. RER is basophilic. Why it is basophilic? Because of the presence of ribosomes. It can take the basic stain, so it provides membrane to nuclear envelope after telophase. Very important function. जब टीलोफेज का टाइम होता है उस वक्त आपको पता है सेल डिवीजन में प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाता है और टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप रीअपीयर्स. तो उस न्यूक्लियर एनवेलप को बनाने के लिए हमारे पास एक पाइवोटल रोल अदा करता है, प्ले करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइट. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पार्ट. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये मैंने फंक्शंस आपको बोले. जो भी हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस है, जो भी हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड many more things. Thank you very much for watching. Wish you all the best.